guys, this is Preeti. Welcome to my YouTube channel, and today's topic is silent features of Indian Constitution. So let's begin with the topic. Start with the introduction. The Constitution of India, which is a fundamental law of land, became effective on January 26, 1950. Before the advent of the new constitution, इंडिया वॉज गवर्न अंडर द गवर्नमेंट एक्ट 1935. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बना है 26 जनवरी 1950 को ये इफ़ेक्टिव हुआ है. ओके, सो बिफोर द एडवेंट, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हमारा इंडिया गवर्न कैसे करता था? तो वो गवर्न करता था अंडर द गवर्नमेंट एक्ट 1935, और ये एक्ट जो है ये इफ़ेक्टिव हुआ ऑन 1937 को ये इफ़ेक्टिव हुआ है. उस टाइम पे, जिस टाइम पे हमारी इंडिया अंडर द गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में थी. ओके, thirdly, the Constitution of India is basically a law relating of the government to the of the country. Okay, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा लॉ जिसमें गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होता है, लॉ ऑफ गवर्नमेंट एंड द कंट्री के बीच में. द कोर्ट हैव द power to declare the unconstitutional if the law is bound to have under the article of 13. Secondly, see the meaning of the constitutions. Okay, so the meaning of the constitution has say that according to Vedi and the Phillips, constitutional law is law which describe the structure, power and the functions of the government, the relationship with each other and with the people. It consists both the legal as well as non-legal rules. The former rules enforceable by the court, while the latter using are not so enforceable, though accepted as a binding by all who are concerned in the government. So जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये वेडे एंड फिलिप के हिसाब से क्या है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें रिलेशनशिप ऑफ गवर्नमेंट डिसाइड होता है. सो मतलब वो क्या कहते हैं कि दैट द फॉर्मल एंड द रूल्स दैट उसमें क्या फैक्टर्स जो हैं वो समथिंग फैक्टर्स हैं जो लीगल हैं, सम फैक्टर्स आर नॉन लीगल रूल्स हैं. ओके, सो दस द रेफरेंस टू दिस डेफिनेशन वी सी द सम रेफरेंस पॉइंट एज अ एस्पेक्ट. Firstly, that it is a document of a describe the structure, power, functions of the government, as see that the legislature, executive and the judiciary. Okay, so next point is it speak about the relationship of government with government and each other, and thirdly its relationship with the other people. Thirdly, start with the silent features. Let's silent features see that. The first is a comprehensive document. The Indian Constitution is a comprehensive and a most detailed constitution in the world. So it is originally consisted that the 395 article divided into 22 parts and 8 schedule. So जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ओरिजिनेटेड हुआ था स्टार्टिंग में, उसमें 395 आर्टिकल डिवाइडेड इंटू 22 पार्ट एंड 8 शेड्यूल थे. But now, presently, it contains more than 400 articles divided into 24 parts and 12 schedules. Okay, the several reasons as instrumental for this. The Constitution deal with the organization structure, not the central but the state government. Okay, central and state government है जो हमारी इंडिया गवर्न करती है, इंडिया हमारी चलती है उसके हिसाब से. Constitution has given a detail and a central state relationship है, एक central and state relationship देता है. Okay, that ensures that the based on the concept social welfare of the constitution includes that. The third point we say is that the directive principle of the state, it can be influenced on that. Okay, third directive principle state. सेकेंड पॉइंट इज साइलेंट फीचर का जो सेकेंड पॉइंट है दैट इज़ द मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन. एज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड इन अ mid-20th century, दो आर कॉन्स्टिट्यूशन में बी सेड टू बी बोरो कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये बोरो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अलग अलग स्टेट्स के लाइक यूएसए है, यूके है, उन कनाडा है, सब उनके फीचर्स जो हैं, उनके कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, फीचर्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं. ओके, सो फर्स्ट जो हमारा प्रोविजन फर्स्ट हम देखेंगे, द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए. जो प्रोविजंस हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स के, जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, वो लिए गए हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से.
सेकेंडली द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी फ्रॉम आयरलैंड लिए गए हैं. ओके. थर्ड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट लिया गया है यूएसए से. सो मीन जो जुडिशियल रिव्यू होता है कि किस पॉइंट पे क्या रिव्यू देना है, क्या करना है, जो जुडिशियल फैक्टर है, जो जुडिशियल मेन पॉइंट है वो. फोर्थली द फेडरल सेटअप विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर फ्रॉम कनाडा. जो फेडरल सेटअप है हमारा, जो फेडरल सेटअप है वो हमारा लिया गया है कनाडा से. सो मीन्स दैट कि जो हमारा मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है ये बना है अलग अलग तरह के एलिमेंट्स लेकर, दूसरे के स्टेट से जो फैक्टर्स हैं उनको लेकर बनाया गया है. ओके. सो जैसे कि हमारे प्रोविजंस देखे, हमने राइट्स देखे, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स देखा, एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड सुप्रीम कोर्ट देखा, एंड थर्डली द फेडरल सेटअप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर फ्रॉम कनाडा. सो ऐसे करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट्स ड्राफ्टेड, ये बनाया गया है. जो फोर्थ पॉइंट है ये रेडिसिड्यूरी पावर फ्रॉम अ सेंट्रल फ्रॉम कनाडा से लिया गया है. देन द फिफ्थ पॉइंट इज इमरजेंसी प्रोविजन फ्रॉम अ जर्मन रेट से लिया गया है. एंड सिक्स्थ पॉइंट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द यूके से लिया गया है. अदर ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं जो अलग अलग स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, एंड तब जाके हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है. तो इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन के उसके पॉइंट्स देखे, कॉन्स्टिट्यूशन बोरो कहाँ से किया गया है. थर्ड पॉइंट है हमारा साइलेंट फीचर्स का जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. अब हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है, आर इंडियन गवर्नमेंट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ओके. सो फर्स्ट पॉइंट वी सी दैट द ब्रिटिश मॉडल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोथ सेंटर एंड स्टेट. अब यूएसए में देखा तो उसमें वहाँ पे सिर्फ सेंटर अथॉरिटी है. ओके. वहाँ पे सिर्फ सेंट्रल अथॉरिटी या फिर स्टेट अथॉरिटी है. ओके. बट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें सेंटर भी है एंड स्टेट भी है. हमारा सेंट्रल जो है वो दिल्ली से चलता है, एंड स्टेट अथॉरिटी हमारे अदरवाइज जो स्टेट्स हैं उनकी गवर्नमेंट्स में ला के चलता है. सेकेंड पॉइंट, द एसेंस ऑफ दिस सिस्टम इज दैट दो द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, द रियल पावर लाइज इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड दे कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउसेस ऑफ द पीपल. जो उसके लोकसभा राज्यसभा है अंडर आर्टिकल 17 सबसेक्शन 3 से चलता है. Okay, and the third point is see that the same pattern has been adapted in the state with the some modification. यही पार्ट जो है लोकसभा के हिसाब से चलता है, दैट आर्टिकल 17 सब क्लॉज 3 के हिसाब से, एंड देन उसके हिसाब से हमारे आगे की मॉडिफिकेशन करके उसमें आगे की स्टेट्स चलती हैं सारी. सो फोर्थ पॉइंट जो साइलेंट फीचर्स का है वो है यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें एक यूनिक तरह का ब्लेंड है, एक मिक्सचर है बनाकर, उसमें रिजिडिटी है एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी है. हमारा कभी कभी लगेगा कि हमको बहुत रिजिड है, बहुत मुश्किल है, बहुत किचकट है, बट समटाइम्स लगेगा कि ये फ्लेक्सिबल है. ओके. कि बहुत इजी है, सारे गवर्नमेंट्स रूल्स रेगुलेशन बहुत इजी हैं, एवरीबडी कैन अडेप्टेड, बट some kind of there is restrictions and rule are over there. So let's see the first point. From the standpoint of amending the constitution is flexible as well as rigid. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही गया था तभी से ही इसमें कुछ फीचर्स ऐसे थे कि ये रिजिड है, कभी कभी लगता है, जैसा मैंने आपको बताया, कभी कभी लगता है रिजिड है, कभी कभी लगता है फ्लेक्सिबल है. ओके. So second point is it is a few provisions that are required to constitute of a half of the state legislature. Rest the provision can be amended by a special majority of parliament. आर्टिकल 368. अब जैसे मैंने बताया कि कुछ सिचुएशंस जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हैं, रिजिडिटी है एंड सम फ्लेक्सिबल है, बट हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जो प्रोविजन है वो दी गई है आर्टिकल 368 में. ओके. आगे हम वो देखने वाले हैं जैसे जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे.